Let's invite today's speaker for this 134th GSTS talk. That is Miss Kanchan, and she is a graduate scholar from Sri Venkateshwara College, University of Delhi. And today she will be speaking on the topic stem cells, a new way to create life. So, Miss Kanchan, now the stage is all yours. So first of all, let's just go through what the objectives of my talk is. But what is stem cell? Second is types of stem cells. Third, why stem cells? The fourth is bioethics, and fifth is misconducts in stem cells. So let's just move ahead before starting what is stem cells. Let's just understand what is a cell. A cell is actually a basic unit of life. So for understanding like all the living organism, we all compose of cells. Now before where we have studied like known what is cells, just to understand like from cells why we are saying what we are like understanding from that about stem cells. So when we talk about cells, when they divide into two cells, they actually form cells like itself. But there is something different about stem cells. When stem cells divide into two different cells, they self-renew. They form a cell which is like itself and a new differentiated cell. So when I say differentiated cell, it means it has some special function. Stem cell itself did not have any special function. It is undifferentiated. So to understand how a life is formed from a single cell, let's just play this video. Let's just see this video. When a male and a female gamete fuse together, it forms a single zygote. Like you can see in this picture, a single cell is here. But now what you will going to see in the further video if it is gone played, but what will happen is that this single zygote will going to divide into two cells, then three, then four cells, 8, 16, and further on the division will go on, go on, go on, and it will form beautifully. It will form a new creature. Then new creature for understanding that from a single cell we are forming a life itself. We are forming a new creature. So to understand like how this life is forming, actually it is forming from the stem cells because the cells are forming the organs, the forming the all the organization inside our body. So for understanding how it is forming, let's just go towards the types of stem cells. So to understand like we have two types of stem cells. Number one is embryonic stem cells and second is adult stem cells. Embryonic stem cells are found in the embryo. So when we say like when a life is going on in an organism, first it always in its embryo form. It is baby. Then it start growing on. It form an adult. So when it is in initial stage from a zygote to become embryo, then from embryo to become adult, that embryo itself contains some stem cells in it. So there are two types of embryonical stem cells. That is number one is totipotent stem cell and second is pluripotent stem cells. To understand this potency concept is that when a single cell is dividing, okay, the single cell is dividing, it is forming some potential to form new cells. It have a potential to form new cells. So it will form a another new differentiated cells. So here the totipotent stem cell will form a another differentiated cell. So here the embryonical stem cell, you can see it will form a umbilical cord and another an embryo. So the pluripotent stem cell will give you an embryo. Then other when we go further, that will more differentiated and it will form your pluripotent, multipotent stem cell and unipotent stem cells. So it will form and again undergo differentiation and it will give you organs. Like simply a single embryo, in a single embryo, like here I will show you a blastocyst. Here if you can visualize the when egg is fertilizing, it will give you a bunch of cells. Then again the bunch of cells is organized and inside of the cell you can see the many cells are there. These cells are actually nothing but your pluripotent stem cells. It will give you further when it will differentiate, it will give you more differentiated cell like your hematopoietic blood that will form your blood cells, all the blood cells related cells, the neural cells and mesenchymal skin related cells. These are the cells that will further on division and division and it will form the organs. It will form the complex or multiple organisms. So for under like we have get the little bit basic about the stem cell and what are the types of stem cell. So
to understand the application, the basic is important. So let's just go towards the applications. So first application is about cloning. So now we are doing like we can use these stem cells to make clones. So it's a huge thing. Then we will going to find cures from these using these stem cells. Then we can actually study developmental biology, like how an organism is developing from a single cell to the complex in its complex form. We will study by the stem cells. We can examine it. Then skin care. We use these stem cells in skin care and in skin transplantation, regenerative medicine, species conservation, and drug testing also. So I will go through all the slides. Like we'll first start with the cloning. So this cloning concept is begin with 1885. Like from very starting, it is very early. From scientists start thinking about when they get the stem cells, they start forming like how we can use these cells to form a new life. So from there, the cloning concept begins. What happens is that actually from 1885 to 1975, in this period of time, the scientists were actually using the embryo. They were using the embryo and they taking stem cells from it, and they were forming an organism, new organism by using those cells from the embryo. And what happened to the embryo? It simply dies. So we need some better options. We need something to form to make a clone. But when we are saying cloning, like it is not something very easy. Because on that period of time, the transplantation was not introduced. Like how we going to transplant that blastocyst inside a female, because it is important कि एक फीमेल का वॉर्म हमें चाहिए होता है ग्रो करने के लिए ऑर्गेनिज्म को, उसमें हम ट्रांसप्लांट करते हैं. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी कुछ ऐसा होता है, बट ये थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि हम इसमें एम्ब्री एक स्टेम सेल की मदद से कर रहे होते हैं. सो लेट्स मूव अहेड कि इसमें आगे this dolly sheep, when we use its stem cell to form the dolly. So, first mammal created by nuclear transfer using somatic cell, dolly sheep. So let's understand about that. तो डॉली शीप को बनाने के लिए हमने तीन तरह की शीप्स का इस्तेमाल करा था. तो एक शीप थी जिसने अपना हमें न्यूक्लियस दिया था, उसके सेल में से हमने न्यूक्लियस निकाला. अब न्यूक्लियस वो होता है जो सारे जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है. और वो जेनेटिक मटेरियल क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हम जो बने हैं, हमारी बॉडी में इतने सारे अलग, हम इतने कॉम्प्लेक्स है. हमारे कई हार्ट एक फिक्स पोजीशन में है, हमारा ब्रेन एक अलग जगह में, हमारी आईज एक अपनी जगह में है. सबका फंक्शन बहुत डिफरेंशिएटेड है, सब अलग अपना अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं. तो ये चीज डिटरमाइन कौन करता है? तो वो हमारे डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है जो हर चीज को फंक्शन आउट करता है, हर चीज को कंट्रोल करता है. तो हमने एक शीप से उसका न्यूक्लियर मतलब सोमेटिक सेल से, मतलब सेल्स भी बहुत डिफरेंशिएटेड होती है एज अ सोमेटिक सेल और एक गैमेटिक सेल में. तो हमने एक सोमेटिक सेल से क्या लिया? न्यूक्लियस लिया. इनमें क्या डिफरेंस होता है गैमेटिक और सोमेटिक सेल में? कि गैमेट वाली होती है जो एक्चुअली में फ्यूज करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकती है, बट सोमेटिक सेल होती है जो हमारी जैसे स्किन में प्रेजेंट हो गई, हमारे कहीं पे भी बॉडी में जहाँ पे भी पूरे हम सोमेटिक सेल्स से बने हैं. बट गैमेटिक सेल्स ऐसा नहीं होती, वो पर्टिकुलरली हमारे गोनैड्स में पाई जाती हैं. वो बहुत ज़्यादा मतलब उनका अमाउंट भी कम होता है एज कंपैरिजन टू सोमेटिक सेल्स जो हमारी पूरी बॉडी में होते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट कि अब हमने बोला कि हमने सोमेटिक सेल से न्यूक्लियस लिया, बट हमने एक अनदर शीप में से उसके एग सेल से, मतलब उसके गैमेटिक सेल से उसका हमने न्यूक्लियस निकाल के उसके सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को उसके अंदर डाला. एंड देन हमने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके उसे फर्दर डिवाइड कराया, जिससे हमें देखा कि वो एक सोमेटिक सेल में बदल गया. और फिर हमने उसे एक नए उसमें ट्रांसप्लांट कराया. तो मतलब हमें एक एक ऐसा शीप भी चाहिए जो एक सैरोगेट मदर की तरह वर्क करे, जिसके अंदर हम ट्रांसप्लांट करेंगे, बिकॉज डेवलपमेंट एक्चुअली सिर्फ वूम के अंदर हो सकता है. तो फिर इसके बाद हमें हमारी डॉली शीप मिली. बट ये डॉली शीप मिलने का जो जर्नी था, इट वॉज नॉट ईजी. वाई इट इज नॉट ईजी? बिकॉज हमें 277 रेसिपिएंट, मतलब 277 बार हिट एंड ट्रायल करके हमें एक डॉली मिली है. कैन यू इमेजिन कि हमने कितनी सारी शीप को एज अ सैरोगेट मदर यूज करा है, कितनी बार हमने एग सेल्स का इस्तेमाल करा है, कितनी बार हमने सोमेटिक सेल्स का इस्तेमाल करा है. तो एक डॉली मिलना इज नॉट एन इजी टास्क. तो हम आगे थोड़ा समझते हैं. इफ यू गो टू अनदर स्लाइड कि क्या जो हमने अब एक शीप का ट्रांसप्लांटेशन कर दिया है, मतलब हमने एक शीप का क्लोन कर दिया है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम ह्यूमन का क्लोन करें? तो ये एक बहुत बड़ी अपने में एक स्टोरी है. पर
मतलब हम सब कहते हैं कि लाइक फॉरेन से शुरुआत हुई है, मतलब बाहर की कंट्री से शुरुआत हुई है ह्यूमन क्लोनिंग की। मतलब ह्यूमन क्लोन बने भी नहीं है, बट इसका जो चल रहा है, जिसमें करेंटली इसमें वर्क जो हो रहा है, बट ह्यूमन क्लोनिंग ऑफ कोर्स इट इज नॉट एथिकली राइट, बट इसमें जो भी वर्क चल रहा है वो मैं अलग आगे बताऊंगी। बट इसका जो कंसेप्ट है वो आया कहाँ से, तो वो आया है इंडिया से। इंडिया से महाभारत, आप सभी ने थोड़ा सुना होगा उसके बारे में, महाभारत के बारे में पढ़ा होगा सभी ने, मैं सुना क्या होगा, तो पढ़ा होगा सभी ने। तो उसमें सबसे पहले हमारा कौरवाज लेजेंड, तो कौरवाज लेजेंड में हमारा क्या था, तो कौरवाज लेजेंड में हमारी एक किंगडम था हमारा, जिसमें दो, एक राजा थे एक रानी थी। एक राजा थे हमारी द्रौपदी थी हमारी रानी, और राजा थे हमारे अ, उनके जो हस्बैंड थे। और लेकिन उनके इसमें था क्या बेसिकली कि जो महर्षि व्यासाय थे वो आए थे द्रौपदी से, मतलब वो थक थक के आए थे इनके किंगडम में एज अ गेस्ट बन के। तो एज, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में ये कि हमारे यहाँ कोई भी गेस्ट आता है, वी हम उन्हें सर्व करते हैं, हम उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखते। तो उसी तरीके से द्रौपदी ने कोई कमी नहीं रखी महर्षि व्यासाय की खातिरदारी में, सॉरी द्रौपदी ने, गांधारी, आई वॉज कंफ्यूज बिटवीन दैट, गांधारी ने कोई कमी नहीं रखी महर्षि व्यासाय की खातिरदारी में। उन्होंने खूब उनकी अच्छे से खातिरदारी करी, और महर्षि व्यासाय बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए गांधारी की इतनी अच्छी सर्विस है, उन्होंने क्योंकि अपनी तरफ से बहुत अच्छा करा। तो महर्षि व्यासाय ने बोला कि मैं आपको एक वरदान देता हूँ देवी, तो आप बोलिए आप क्या चाहते हैं। तो गांधारी ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि मेरे 100 पुत्र हो। तो आप सोचिए कि एक सिंगल एक फीमेल कैसे 100 बच्चे दे सकती है। तो लेकिन अब हम उस जमाने में हैं जहाँ पे हर चीज पॉसिबल है, हम महाभारत पढ़ रहे हैं, महाभारत एक अपने आप में ही अद्भुत है जहाँ पे हर चीज पॉसिबल है। तो महाभारत में अब अपने आप में ही अब महर्षि व्यास है, एक महर्षि थे, उन्होंने, उनको कितना ज्ञान था। तो उन्होंने क्या करा, महर्षि व्यासाय ने उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि हम आपको बोलते कि आपके 100 पुत्र होंगे। तो धीरे धीरे मतलब जैसे समय बीता तो गांधारी जी प्रेग्नेंट हो गई, और फिर उन्होंने लेटर ऑन क्या करा, एक मतलब 9 साल का, नॉर्मली हम सबको पता है प्रेगनेंसी 9 साल की, 9 महीने की होती है। 9 महीने की प्रेगनेंसी थी, लेकिन उनका 9 महीने में बच्चा नहीं हुआ था। उनको मतलब 2 साल तक गर्भवती थी। तो उनको हो गई टेंशन कि अब 2 साल हो गए अभी तक नहीं, हम मतलब बच्चा अभी तक नहीं हुआ है। प्लस उनके जो साथ में उनकी जो साथ के जो उनके जो उनके हस्बैंड थे, उनकी जो वाइफ थी, उनका बेबी हो चुका था, बट शी वॉज लाइक टेंस कि अभी तक नहीं हुआ है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने डिलीवरी पहले ही करा लिया, जिस समय से पहले ही 2 साल तो वैसे पहले से ज्यादा होता है, उससे पहले ही उन्होंने डिलीवरी करा लिया। और फिर उन्होंने देखा कि उनके उसमें पिंड निकला है, एक एक सिंपल मांस का पिंड निकला, उसमें कोई लाइफ थी ही नहीं। महर्षि वैसे बोलते कि 100 पुत्र होंगे, यहाँ तो एक भी नहीं हुआ। तो फिर वो खुद ही सोचने लगी कि मतलब ऐसा क्या होने वाला। तो फिर महर्षि व्यासाय आए और उन्होंने उन्हें बताया कि देवी आप 100 अलग अलग मटके लाइए, उनमें फिर उन्होंने उनके उन छोटे छोटे पिंडों के टुकड़े करे और उन्हें उन मटकों में डाल दिया। तो उन बाद और दो उन्होंने बोला कि आप 2 साल तक वेट करिए और आप देखेंगे कि आपके पुत्र बने, मतलब इससे पुत्र आपके आएंगे। तो लेकिन जब वो गांधारी थी, वो उसी टाइम सोच भी रही थी कि अगर मेरी पुत्री होती तो और भी बढ़िया होता, फैमिली कंप्लीट हो जाती। तो उन्होंने इसी टाइम में एक और मटका रखा जहाँ पे वो एक लड़की भी पैदा हुई। तो मतलब कुल मिला के उनके जितने भी इतने सारे पुत्र, इतने सारे मटके थे, इसमें इन्होंने बच्चे रखे, तो उनके पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। सारे अलग 100 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। तो अब खुद हम इसमें सोचते कि अब स्टेम सेल्स कहाँ है। तो आप समझेंगे कि इसमें जो सिंपल एक मांस का टुकड़ा इस्तेमाल करा गया था, वो उसने एक्चुअली में एक मटके में ग्रो करा एक इसको, एक ऑर्गेनिज्म को, एक ह्यूमन बीइंग को। तो ये अपने आप में एक, जैसे हम पढ़ते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्लांट का, जो टेस्ट ट्यूब में हम कैसे फर्टिलाइजेशन, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी प्लांट से थोड़ा अलग था, ये एक अलग ही टेक्निक थी जिस तरीके से हमने ग्रो कराया और एक ऑर्गेनिज्म ला। तो और जो सेल्स थी एक्चुअली में वो नथिंग, हमें सबको पता है वो स्टेम सेल्स थी, क्योंकि स्टेम सेल्स ये एक ऑर्गेनिज्म जो ग्रो कर सकती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ये मैंने बल लगाया है। इसमें हम क्या समझते हैं कि फॉरेन के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि सब कुछ तो महाभारत से ही निकला है। कौरवास ने टेस्ट ट्यूब बेबीज, उसमें वहां से टेस्ट ट्यूब बेबीज निकले हैं। 10 अवतार जो थे विष्णु के, वहां से डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का वहीं से एक प्रूफ मिलता है हमें। और भी बहुत सारे हैं, ये हर एक हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें महाभारत से निकली है।
तो ऐसे ही हमारा जो स्टेम सेल का कंसेप्ट है उससे ह्यूमन क्लोनिंग करना, वो एक्चुअली में शुरुआत उसकी जहाँ पे उसका वर्णन हुआ है वो महाभारत से है। तो लेकिन एक सवाल अभी भी हमारे दिमाग में रहता है, क्या एक्चुअली में हम ह्यूमन का क्लोन कर सकते हैं? क्या ये एक पॉसिबिलिटी है? क्या ये मतलब हो सकता है? तो देन अच्छा, मैंने एक मूवीज भी लगाई हैं आपके लिए, तो हम क्लोनिंग के ऊपर कुछ मूवीज भी देख सकते हैं। तो देन इट इज लाइक फर्स्ट मूवी अवर स्प्लाइस एंड देन निंजा टर्टल्स एंड अवतार, ये अपने आप में मतलब बढ़िया मूवीज है जिसमें आप थोड़ा क्लोनिंग के बारे में देखेंगे। देन हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे कि ह्यूमन क्लोनिंग एक्चुअली पॉसिबल है या नहीं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आता है एथिकल इश्यूज का, क्या ह्यूमन क्लोनिंग रिक्वायर्ड है, ये भी, और एथिकल इश्यूज भी आते हैं, क्या ह्यूमन क्लोनिंग से जुड़े क्या वो है। सबसे पहले अगर ह्यूमन क्लोनिंग होती है तो उसका हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ह्यूमन बीइंग का मतलब एक साइंटिस्ट का ऑफकोर्स कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए कि हमने अगर एक ह्यूमन का क्लोन करा है तो उसका कुछ ना कुछ गलत इस्तेमाल हो सकता है। इधर लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसका एज अ स्लेव की तरह, उसे बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट कर सकते हैं, उसको ऑर्गन ऑर्गन निकाल के उसको ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो सकती है। बहुत सारे पोटेंशियल है कि अगर एक ह्यूमन का क्लोन बनता है तो उसका बहुत गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो ये तो एक अलग चीज हुई। बट क्या ये पॉसिबल है या नहीं, सबसे पहली बात ये आती है। तो पॉसिबिलिटी में हमारा आता है कि इसका होने के चांसेस बहुत ज्यादा मतलब नहीं के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि हमने डॉली के उसमें पहले ही बोला था कि कितने सारी सैरोगेट शीप्स हमें रिक्वायर्ड थी, कितनी सारी सैरोगेट शीप रिक्वायर्ड थी जब हमने एक डॉली बनाई। वैसे जब अगर हम ह्यूमन के उसमें सेम मेथड यूज करते हैं तो कितनी सारी सैरोगेट मदर्स हमें लगेंगी और कितने सारे ओवम एग के डोनर लगेंगे जब हम एक ह्यूमन का ऐसे बाय यूजिंग दिस मेथड ऑफ सोमेटिक सेल ट्रांसप्लांट का, सोमेटिक सेल्स में जैसे हमने ट्रांसप्लांट करा वैसे अगर हम करते हैं तो ये इट विल रिक्वायर मल्टीपल थिंग्स और इट इज नॉट समथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि एक फीमेल मदर का जो बॉडी होता है, अब वो प्रेग्नेंट होने के बाद बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होता है। वो लाइक एक फीमेल मदर अगर एक बार लाइक हमने ऐसे बहुत सारी फीमेल मदर को करा तो उसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। एक तो वो भी है, एक का तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें मल्टीपल फीमेल्स चाहिए इसके लिए। और अगर हमने चलो किसी तरीके से कर भी लिया दैट इज समथिंग की बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। क्यों? क्योंकि नेचुरल मेथड से नहीं हो रहा है। फीमेल को बहुत ज़्यादा पॉसिबल अलग अलग चीज़ें उसमें बॉडी में हो सकती है। ट्यूमर के फॉर्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स उस बेबी को होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जब हम इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। फीमेल के बॉडी में अगर किसी तरीके से वो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर बेबी डेवलप नहीं हो पाया तो फीमेल की बॉडी में अपने एक अलग कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। तो ये चीज हो गई। बट एक और बात आती है कि क्या एथिकली ये हम ह्यूमन क्लोनिंग कर रहे हैं ये सही है? तो इन सारे पॉइंट से तुम ये हम लोग समझ सकते हैं कि एथिकली ये चीज सही नहीं है। हम ह्यूमन का जो क्लोन बना रहे हैं बिल्कुल भी सही चीज नहीं है क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि ठीक है, हमने बोला कि ह्यूमन क्लोनिंग एथिकली राइट नहीं है और ये नहीं होती है। तो लेकिन और अभी तक इसका कोई वो नहीं निकला, अभी तक कोई साइंटिफिक ऐसी डिस्कवरी नहीं निकली है कि जिसने बोला कि हमने ह्यूमन का क्लोन कर दिया है। बट एक बड़ी चीज आती है यहाँ पे, एक मिसकंडक्ट भी है। मिसकंडक्ट भी है जहाँ पे साइंटिस्ट ने एक्चुअली बोला है कि उन्होंने एम्ब्रियो का क्लोन कर लिया, उन्होंने एक बेबी क्लोन कर लिया है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे फ्रॉड्स भी हैं स्टेम सेल की रिसर्च में जिन साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमने ये चीज करी है बट वो एक्चुअली में नहीं होती है। लेकिन इसके वजह से क्या हो सकता है, मतलब कोई एक झूठा फॉल्स बोलना कि हमने ये चीज कर ली है, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, इसके वजह से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है रिसर्च में, आगे वो चीज भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये चीज भी है। लेकिन आगे अब हम एक और डिस्कवरी पढ़ते हैं, वो है इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल की। तो इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल अपने आप में ही मतलब बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। शिनाया यामानाका और काजुजोशी ताकाहाशी, इन दो साइंटिस्ट के द्वारा, ये जापान के साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने करा क्या था बेसिकली, हमारी जो सोमेटिक सेल्स होती है हमने उससे स्टेम सेल बनाने का एक तरीका मतलब ढूंढा था उन्होंने। लेकिन ये अपने आप में बड़ी डिस्कवरी क्यों है? क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम एम्ब्रियो के स्टेम सेल्स को निकाल रहे थे या फिर हम अलग अलग साइट या फिर उन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे थे जो एथिकली सही नहीं थी स्टेम सेल्स को लेने के लिए। बट नाउ वी हैव अ राइट टेक्निक, वी कैन जनरेट स्टेम सेल्स, वी कैन फॉर्म द स्टेम सेल्स फ्रॉम यूजिंग द सोमेटिक सेल। हम सोमेटिक सेल्स को स्टेम सेल में बदल सकते हैं। एंड हाउ, कैसे कर सकते हैं? तो इसमें उन्होंने टाइप्स ऑफ जीन्स बताए थे, 4 तरह के जीन्स उन्होंने हमें बताए जिनका हम इंट्रोड्यूस करके सोमेटिक सेल्स को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं स्टेम सेल्स में।
तो फर्दर ऑन लेकिन एक स्टेम सेल्स आपने बना लिया, वो स्टेम सेल का नेचर कैसा होता है, वो प्लूरीपोटेंट होता है नेचर में। तो उस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से अब ऑफ कोर्स अब उससे हम कर क्या सकते हैं, हमने बोला कि वो प्लूरीपोटेंट, इसका इस्तेमाल क्या है। तो इस्तेमाल है कि इससे हम स्पेशलाइज्ड सेल बना सकते हैं, मतलब हम इससे ब्लड सेल्स बना सकते हैं, हम अपनी स्किन सेल्स का बना के स्किन टिश्यू का वो सेल कल्चर करके हम अलग अलग सेल्स इसमें बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और भी आता है कि आपने बोला कि हम ये सब कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। तो इसकी एक रेसिपी होती है, पर्टिकुलरली बहुत सारे मीडिया होते हैं और सप्लीमेंट्स होते हैं जो इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में दिए जाते हैं, जिससे वो पर्टिकुलरली स्पेशलाइज्ड सेल में बदलती है। सो आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक हियर, इफ एनीबडी वांट्स टू सर्च इट टू नो द रेसिपी कि किस तरीके से एक इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से हम एक स्किन सेल जनरेट कर सकते हैं, ब्लड सेल बना सकते हैं, दे कैन नो व्हाट आर दोज रिक्वायर्ड मीडिया एंड सप्लीमेंट्स। सो दिस इज वेयर आई हैव पुट इट कि इसका कहाँ कहाँ यूज है इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स का। सबसे पहले अल्जाइमर, पार्किंसन डिजीज, स्ट्रोक, ट्रॉमेटिक, ये सारी बाल्डनेस, इवन दो जिस पर्सन को कोई ब्लाइंडनेस है, डेफनेस है, उसमें भी हम स्टेम सेल्स का इंड्यूस प्लूरिपोटेंट आईपीएस सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स अगर कोई भी सारी डिजीजेस जो मैंने आपको दिखाई है वो एक्चुअली में हर एक एक सेल्स के ना होने के प्रेजेंस है, जैसे ब्लाइंडनेस है तो उसमें एक सेल की कुछ सेल्स की कमी होती है, स्पेसिफिक टाइप के सेल्स की कमी की वजह से ब्लाइंडनेस होती है, जैसे ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड हमारी सेल्स है उसमें वो सेल्स ज्यादा नहीं प्रोड्यूस होती जिससे ब्लाइंडनेस कॉज होती है। तो साइंटिस्ट है, अब ये एक ऐसा नहीं है कि 100% इट विल प्रोवाइड रिजल्ट, 100% हम ऐसे ब्लाइंडनेस को खत्म नहीं कर सकते। इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं जिसमें कुछ हद तक साइंटिस्ट ने ब्लाइंडनेस को या फिर डेफनेस को कुछ हद तक कम करने की उन्होंने कोशिश करी है। और ये जितनी भी रिसर्च है इसमें किसी में भी ऐसा नहीं कि 100% रिजल्ट का हमने बोला है। इट इज स्टिल ऑन गोइंग, इट इज स्टिल इन क्लिनिकल ट्रायल्स, इंडिया में भी फॉरेन में भी हर जगह इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें क्या कर रहे हैं, एज अ पार्टिसिपेंट, मतलब इन रिसर्च में एज अ वॉलेंटियर जा रहे हैं और उनमें ट्रायल्स हो रहे हैं, उनमें जैसे जिनको प्रॉब्लम्स हैं उनमें देखा जा रहा है कि क्या उनको वो कैसे सॉल्व करा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये तो हमने बात करी कि किस तरीके से हम स्टेम सेल्स का यूज कर सकते हैं, बट क्या हम स्टेम सेल से ऑर्गन बना सकते हैं, कैन हाउ वी कैन मेक ऑर्गन फ्रॉम स्टेम सेल्स। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बिकॉज ये एक्चुअली में वैसे नॉर्मली सेल्स से एक 3 डायमेंशनल ऑर्गन बनाना, इट इज स्टिल ऑन गोइंग रिसर्च। फॉरन में ये रिसर्च चल रही है कि हम किस तरह से लैब में ऑर्गन आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हैं, बट हमारे पास और तरीके हैं, साइंटिस्ट ने एनिमल्स में ऑर्गन ग्रो करे हैं। तो हमने एक्चुअली बीच में न्यूज चल रही थी जिसमें एक पिग के ऊपर एक ऑर्गन दिखा रहे थे कि, और एक माउस के ऊपर एक पर्टिकुलर ईयर था, एक माउस के ऊपर एक ईयर सा जनरेट करके मतलब बहुत वो फोटोज वायरल हो रही थी। तो साइंटिस्ट एक्चुअली में करते कैसे हैं, तो ऑर्गन के लिए हमारा वो होता है कि हम काइमेरा फॉर्मेशन करते हैं। काइमेरा क्या होता है कि हम जितने जो हमारी एम्ब्रियन एक पर्टिकुलर जो पिग है वो अपने इनिशियल उसमें जब एम्ब्रियो के फर्स्ट स्टेज में होता है, हम उसमें ह्यूमन बीन का जो स्टेम सेल्स होती हैं उनको इंट्रोड्यूस कर देते थे, उनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, पर जो पर्टिकुलर ऑर्गन है उसके लिए जो स्टेम सेल होगी उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। फिर वो एक उसके अंदर मिक्सड होके वो लेटर ऑन क्या होगी, जनरेट होगी उसी पिक के अंदर। बट इसका ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, क्या, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो हम ऑर्गन उससे निकालेंगे वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट करेगी, बिकॉज वी नो हमारी बॉडी में अपना एक अपना एक वो हमारा अपना एक फाइटिंग मैकेनिज्म है जिसमें फॉरेन बॉडीज को जो भी हमारे फॉरेन उससे आती है हम उसको रिजेक्ट करते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन जिसे हम कहते हैं। तो ये बाहर के ऑर्गन्स आते हैं, इसमें भी ग्राफ्ट रिजेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो दैट्स व्हाई हम एक बेटर मेथड के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन ये स्टेम सेल से ऑर्गन बनाना क्यों जरूरी है, कि वाई वी आर मूविंग टुवर्ड दैट हायर टेक्नोलॉजी, क्योंकि एक्चुअली में इंडिया में हर दिन हर दिन इसमें इंडिया में हर दिन के 20 लोग मरते हैं बिना ऑर्गन की कमी की वजह से, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन नहीं होते। ये ना इंडिया के इसमें फॉरेन में भी सेम ऐसी है, यूएस में भी एक डेवलप कंट्री में भी ऐसे 15 लोग 20 लोग की डेथ होती है बिकॉज उनके पास ऑर्गन नहीं होते, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन ही नहीं होते, एक पर्टिकुलर मैच नहीं होता। तो इसके वजह से दिस इज वन थिंग वी वाई साइंटिस्ट वर्किंग टूवर्ड दैट रिसर्च, और स्टेम सेल्स कैसे इसमें मदद कर सकते हैं। Now we will go move toward the another application, use of stem cells in cosmetic products. हम cosmetic products में stem cells का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? So I have
मेड इट दैट कि प्लांट सेंसर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में कैसे यूज है, बट एक्चुअली में ह्यूमंस का जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होता है उसका भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज करा जाता है। चाइना में या फिर कोरिया में इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं जिसमें हम स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करते हैं एज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन अराइज होता है, क्या वो जो स्टेम सेल्स होते हैं वो लाइव स्टेम सेल्स होती है, क्या वो एज अ कंटिन्यूसली डिवाइड वगैरह करती है? तो ऐसा नहीं है, ये प्लांट स्टेम सेल्स या एनिमल स्टेम सेल्स जो भी होती है वो डेड होती है। और उनको हम उन क्यों ये इनका इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि मॉइस्चराइज स्किन को मॉइस्चराइज करना, ग्लोरीफाइड करने और उसको यंग रखने के लिए, स्किन में जितने हमारी रिंकल्स वगैरह होती है उनको रिड्यूस करने के लिए इन सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये इजिली हाइड्रेटेड होते हैं हमारी बॉडी के लिए, स्किन के लिए पर्टिकुलरली। नाउ यहाँ पे एक और चीज मैंने बताई है, कॉर्ड ब्लड बैंकिंग। कॉर्ड ब्लड बैंकिंग क्या होती है, क्योंकि हमारे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था टोटीपोटेंट स्टेम सेल का। जो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स होती है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है, वो मतलब टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स में क्या होता है कि वो दो तरह की, एक तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और एम्ब्रियो बनाती है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में हमारा वो आती है अम्निकल कॉर्ड आती है और प्लेसेंटा आता है। अब ये जो अम्निकल कॉर्ड है, जो बेसिकली जो नाभ, एक बच्चा जब फीमेल के वोम में होता है तो उसकी नाभि जो होती है वो माँ के प्लेसेंटा से जुड़ी होती है। तो वो जो अम्निकल कॉर्ड होती है, हम उसमें भी स्टेम सेल्स एक्चुअली होते हैं और हम उसको एक्चुअली में स्टोर कर सकते हैं स्टेम सेल बैंक्स में। बहुत सारे इंडिया में भी और फॉरेन में भी स्टेम सेल बैंक्स है जहाँ पे अम्निकल कॉर्ड को स्टोर करा जाता है फॉर आगे फ्यूचर में अगर उस पेशेंट को रिक्वायर्ड होगा, अगर वो जिसने डोनेट करा है तो उसकी बॉडी क्योंकि उसके ही स्टेम सेल को रिजेक्ट नहीं करेगी, उससे हम उसे आगे आईपीएस इंड्यूस प्रोलिफरेटिव स्टेम मतलब उसका इस्तेमाल करके आगे हम और ज्यादा सेल्स बना सकते हैं और बीमारियों को लड़ने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंडिया की क्या रिसर्च है स्टेम सेल से रिलेटेड, तो इंडिया की भी वो सेम ही चीज है, इंडिया का स्टेम सेल थेरेपी में बहुत ज्यादा वो है। सबसे पहले जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हुआ था इंडिया में सबसे पहले 1983 में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिसमें ऑफ कोर्स बोन की हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करा था लुकीमिया, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया जैसे कैंसर्स को क्योर करने के लिए। ऑफ कोर्स इट इज नॉट एन 100% क्योर, दैट एज सेड कि क्लिनिकल ट्रायल्स में चलते हैं। इसका कोई ऐसा नहीं कहते कि 100% लुकीमिया से निकल जाएगा, बट कुछ हद तक हम सेल्स बॉडी में दे सकते हैं ताकि कुछ हद तक उसकी लाइफ एक्सपेक्ट जितना लाइफ वो जी सकता है उसको हम बढ़ा सके। तो दिस इज वाई वी यूज दिस हाउ वी यूज इट। एंड देर आर मल्टीपल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बहुत ज्यादा फिर इसके स्टेम सेल थेरेपी के ऊपर इंडिया में भी खुले हैं। जैसे एम्स में भी इसमें करंटली रिसर्च चलती है, सीएमसी वेल्लोर में, कोयम्बटूर में और तुम्हारा मुंबई में हो गया। और इंस्टेम इंडिया का सबसे पहला इंस्टीट्यूट है जिसमें स्टेम सेल्स से रिलेटेड रिसर्च चलती है। और ये इंटरनेशनली बहुत सारी इंटरनेशनल स्टेम सेल सोसाइटीज है उनसे जुड़ा हुआ है और इसमें स्टेम सेल थेरेपी से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च चलती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि बायो एथिक्स इन स्टेम सेल्स रिसर्च। क्या बायो एथिक्स से क्या गाइडलाइंस हैं जो एक साइंटिस्ट को प्लस एक डोनर को, या एक डोनर के क्या राइट है, एक रिसर्चर के क्या उसमें पर्टिकुलरली लिमिटेशंस हैं by using the stem cells, because हमने देख लिया इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। it can actually do multiple things, it can use in your it can use to cure multiple diseases, it can be used in multiple और organ transplantation के लिए, ये चाहे तो स्किन के रिलेटेड चीजों में यूज हो सकता है। तो इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो देन इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होंगे जो जुड़े होंगे। सो तो देन इट इज प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियलिटी। पहली बात तो लाइक हम जो रिसर्च कर रहे हैं स्टेम सेल से रिलेटेड, अगर स्टेम सेल थेरेपी भी हो रही है तो पहली बात जरूरी है समझना कि वो कितना एसेंशियल है। और अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का इस्तेमाल करते हैं तो वो इट इज नॉट एथिकली राइट, हमें हम सभी को पता है इट इज नॉट, बिकॉज वी आर किलिंग अ पोटेंशियल लाइफ दैट कैन फॉर्म लेटर ऑन कैन इटसेल्फ लिव। तो हम उसको मार रहे हैं तो हम उसका तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट हमने आईपीएस इंड्यूस प्रोलिफरेटिव स्टेम सेल का भी देखा कि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन उनका इस्तेमाल भी तभी करा जाए जब एसेंशियलिटी हो, जब रिक्वायर्ड हो, इतनी हद तक नीड हो। और वॉलंटियरियन प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटियरियन, नॉन एक्सप्लॉयटेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंश्योरिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, रिस्क मिनिमाइजेशन, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, और ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो नाउ लेकिन अंडरस्टैंड लाइक हमने जितने भी प्रिंसिपल पढ़े इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज आती है कि हमारे मतलब राइट्स क्या है। एक डोनर के भी अपने राइट्स होते हैं जानने के लिए कि अगर कोई मतलब जैसे अगर कोई स्टेम सेल डोनेट कर रहा है, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग कोई स्टेम सेल डोनेट कर रहा है
कोई अपने ब्लड सेल से स्टेम सेल्स डोनेट कर रहा है, तो या हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बोन मैरो से कोई डोनेट कर रहा है तो एज अ डोनर उसमें कोई ट्रांसमिटेबल डिजीजेस ना हो, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो उसके सेल्स में, तो फर्दर ऑन वरना वो जिसको डोनेट कर रहा है उसके भी वो कॉज हो सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पूरी प्रॉपर एग्जामिनेशन हो उस डोनर का। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है हमारी कि जो हम पर्टिकुलरली टिश्यूज या ऑर्गन्स का मतलब ऑफकोर्स हम ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, तो पर्टिकुलरली उस डोनर को भी हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं उसमें से स्टेम सेल्स निकाल रहे हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम उन्हें बहुत सारे मेडिकेशंस देंगे, और ऑफ कोर्स अगर कोई अपना बोन मैरो से स्टेम सेल्स निकालेगा उसे कितना पेन हो सकता है, उससे रिलेटेड उनको पूरी नॉलेज प्रोवाइड करनी होगी कि उनके स्टेम सेल्स का कहाँ पे यूज करा जाएगा, कैसे उसका कि क्या प्रोसीजर उन पे अप्लाई करा जाएगा इसे निकालने के लिए। इट इज इम्पोर्टेंट कि डोनर को सारे राइट्स उसके हेल्थ से रिलेटेड, उसकी सेफ्टी से रिलेटेड, वो सारी जितने भी जो जिस भी कंपनी से वो है, पर्टिकुलरली कंपनीज भी है, इंडस्ट्रीज भी हैं, उन वो सारे उन्हें बताएं। प्लस जितने हॉस्पिटल से अगर वो जुड़े हैं वो डोनर्स, तो वो उन्हें सारे उनके राइट्स बताएं, ताकि उन पे जो प्रोसेजर यूज करे जाएंगे उनको कंप्लीट नॉलेज हो उसकी। देन आता है अगर हम स्टेम सेल से एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, वे वी यूजिंग स्टेम सेल फॉर मेकिंग क्रीम्स, स्किन क्रीम्स बना रहे हैं या फिर उनको हम स्टोर कर रहे हैं बैंक्स में, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम उसमें प्रॉपर एक तरह का प्रॉपर मेथड जितने मतलब सही तरीके से एक्चुअली वो स्टोर्ड हो। अगर हम बैंक्स में स्टोर कर रहे हैं तो उनके लिए हम उसे क्या करें, कल्चर कर रहे हैं। अगर हम उन्हें बैंक्स में ऑफकोर्स हम कल्चर करते हैं स्टेम सेल्स को, फिर उन्हें लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए हम ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए ताकि कहीं पे भी कुछ गलत एनवायरनमेंट ना मिले, जिसके वजह से बाद में स्टेम सेल्स बैंक में क्या होता है, पेशेंट्स आते हैं वहीं से स्टेम सेल्स लेते जो उनकी सेल लाइन से मिलता हो, जो उनकी बॉडी रिजेक्ट ना करे। तो अगर वहां से हम ले रहे तो वहां पे भी प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, ताकि कोई भी स्टेम सेल्स जो वहां से हम ले रहे हैं वो ऑफकोर्स उस पर्टिकुलर पर्सन को इम्पैक्ट ना करे। तो ऐसे बहुत सारे इसमें बायो एथिक्स आ जाते हैं। तो आई हैव जस्ट टोल्ड यू वेरी लिटिल थिंग्स, लेकिन जो इंडिया का बायो एथिक्स इससे रिलेटेड निकला है वो पूरा 89 पेजेस का है, उसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। तो इट इज अ लॉन्ग लॉन्ग बुक, उसे पूरा स्टडी करना इट इज नॉट पॉसिबल, बट समवन इज इंटरेस्टेड हु दे कैन डू दैट। और बहुत सारे एथिक्स इससे जुड़े हुए हैं, तो आई हैव जस्ट मेंशन वेरी लिटिल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी रिलीजन और रिलीजन रिलेटेड टू स्टेम सेल रिसर्च, कि कैसे रिलीजियस रिलेटेड है स्टेम सेल रिसर्च में, कैसे रिलीजियस का एक रोल प्ले होता है। तो हमारे इंडिया में, हिंदूज में, बुद्धिज्म में या कैथोलिक या बाहर के फॉरेन कंट्री में जो अलग अलग धर्म है, सब में एक ही चीज आती है बायोएथिक्स से रिलेटेड, वही वो रिलीजन में, उनके रिलीजन में जो आती है वो आती है कि हम एम्ब्रियो का इस्तेमाल ना करें फॉर टेकिंग आउट द स्टेम सेल्स। क्योंकि इनिशियल जब इसमें रिसर्च चल रही थी तो नॉर्मली वो क्या कर रहे थे, वो एम्ब्रियो का इस्तेमाल करते थे स्टेम सेल्स को निकालने के लिए, और वो एक पोटेंशियल लाइफ को किल कर रहे थे। बट एज क्योंकि फर्दर ऑन इसमें रिसर्च जैसे जैसे बढ़ रही है, हम एम्ब्रियो का इस्तेमाल ना करें, और अगर हम टेस्ट भी कर रहे हैं ना तो हम एनिमल्स में भी कर रहे थे, लेकिन हम कोई ना कोई एक अलग मेथड भी इस्तेमाल करें उनका टेस्टिंग के लिए, और किसी भी लाइक डायरेक्ट एम्ब्रियो में ऐसे उसमें इस्तेमाल ना करें उसके टेस्टिंग के लिए। तो ड्रग टेस्टिंग का भी इसमें एक आ जाता है। और तो रिलीजियस में, सारे रिलीजन में एक यही है कि दे जस्ट strict they are just saying no towards using the embryo for taking out the stem cell. adult stem cell से related इतना कोई इशू नहीं है किसी भी उसमें रिलीजन में। देन आते हैं मिसकंडक्ट इन स्टेम सेल रिसर्च, कि बहुत सारे फ्रॉड्स हैं एक्चुअली में जो स्टेम सेल रिसर्च से रिलेटेड है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने डेटा को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करा है, गलत तरीके से अपने रिसर्च को रिप्रेजेंट करा है, बोला है कि हम ये पोटेंशियल, मतलब हमारे जो रिसर्चर्स का ये पोटेंशियल है, हम ये कर सकते हैं। तो लेकिन एक ऐसा ही केस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वांग वुन सुक का, जो साउथ कोरियन वेटिनेरियर एक रिसर्चर थे। तो एक वो वेटिनेरियन थे, तो ऑफकोर्स उन्हें एनिमल से रिलेटेड बहुत ज्यादा नॉलेज थी। तो इसका थोड़ा समझने, इसमें इन्होंने मतलब बोला क्या था, इन्होंने बोला था कि इन्होंने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को फॉर्म कर दिया है। मतलब वो सेम सोमेटिक सेल जो टेक्निक मैंने बताई थी डॉली के लिए, उन्होंने सेम टेक्निक का इस्तेमाल करके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बनाया है, उसका वो करा है, और उन्होंने ऐसे 11 एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बना दिए, ब्लास्टोसिस फॉर्म कर दिया है बाहर ऐसे, पूरा यूज करके, हीमेटोपोइड जैसे हमारा
जैसे हमने सोमेटिक सेल्स का इस्तेमाल करके सेम टेक्निक यूज करके इन्होंने ऐसे बोला कि हमने ऐसा कर दिया है। और ऐसे हमने करा कैसे, सेम वही प्रोसीजर होगा, फीमेल के बहुत सारे oocytes का इस्तेमाल करा। इन्होंने बोला हमने कुल मिला के 242 एग्स का इस्तेमाल करा फीमेल के, और उसमें हमने सोमेटिक सेल का सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करके हमने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बनाए हैं। तो अब ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि उस टाइम तक किसी ने भी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल नहीं बनाए थे। तो अब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल किसी साइंटिस्ट ने बनाए, बट ये इट वाज लाइक अ कि ये रिसर्च जो थी ना, ये कम्प्लीटली, पहली बात तो एथिकली राइट नहीं थी, क्योंकि फीमेल के एम्ब्रियो, फीमेल के एग्स का इस्तेमाल हो रहा था। और कोई बहुत सारे इसमें वो निकले, बहुत सारे आर्टिकल्स निकले जिसमें साइंटिस्ट कह रहे थे कि, मतलब उनके जो कलीग्स थे वो इटसेल्फ कह रहे थे कि इन्होंने एक्चुअली में अपनी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के एग्स लेके, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के एग्स का इस्तेमाल करा है ये बनाने के लिए। तो दैट इज वाई इनका मतलब एथिकली राइट नहीं था ये बिल्कुल भी। लेकिन गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करी थी, बिकॉज क्योंकि पहला कोई साइंटिस्ट था वर्ल्ड में जिसने एम्ब्रियोनिकल स्टेम सेल बना दिया है। अब क्योंकि इसका पोटेंशियल इतना ज्यादा है, एप्लीकेशन कितने ज्यादा है, तो साइंटिस्ट, मतलब कम्युनिटी जो थी उनकी वहां की, कोरिया की, उन्हें सपोर्ट करी थी। बट लास्ट में एक्चुअली में पता चला जो ये रिसर्च थी ना, इट वॉज ऑल फ्रॉड, इट वॉज ऑल अ लाई। वो सच ही नहीं था। वो एक्चुअली में उन्होंने एम्ब्रियोनिकल स्टेम सेल बनाई नहीं थी ऐसी कुछ भी। तो उन्होंने एम्ब्रियोनिकल स्टेम सेल एक्चुअली में बनाई नहीं थी। तो इसके वजह से उनको क्या प्रॉब्लम हुई, मतलब पहली बात तो उन्होंने पहले पता, जब उन्होंने बोला कि उन्होंने एम्ब्रियोनिकल स्टेम सेल बनाए, तो उन्होंने बहुत ज्यादा वादे करे लोगों से कि अब हम ये सारे डिजीज को क्योर करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो जिनका जो चल नहीं सकते थे, उन्होंने बोला कि नाउ अब हम ऐसी टेक्निक्स यूज करेंगे कि हम आपको लेग्स प्रोवाइड करेंगे, आप चल सकते हो। ऐसे मतलब उन्होंने बहुत सारे प्रोमिस करे, फॉल्स प्रोमिस करे पब्लिक से, जिससे अब जब लास्ट में जब ये पूरी रिसर्च ही फॉल्स हो गई, तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, उनके करियर में इम्पैक्ट पड़ा। ऑफकोर्स जो प्रोफेसर थे बहुत ही रेन्यूएबल इंस्टीट्यूट के, सियोल यूनिवर्सिटी के, वहां से उन्हें निकाल दिया गया। प्लस उनमें बहुत ज्यादा चार्जेस पड़े, क्योंकि उन्होंने फीमेल एग का इस्तेमाल करा था, और उन पे ऑब्लिगेशन थे कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के भी एग्स इस्तेमाल करे। तो इसके वजह से इन्हें बहुत ज्यादा फाइन देना पड़ा था। और इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन भी थे, इन्हें 2 साल तक जेल भी जाना पड़ा। बट स्टिल अभी भी ये उसमें रिसर्च कर रहे हैं, ऑनगोइंग रिसर्च इनकी चल रही है, मतलब छूटने के बाद भी इंडिया में, मतलब सॉरी अपने कंट्री कोरिया में तो नहीं, लेकिन ये बाहर कंट्रीज में जाके रिसर्च कर रहे हैं। बाकी एक अलग दूसरा वो एक और केस है, हारुको ओबाकाटा, जो इनका भी एक अपना इनका भी एक मिसकंडक्ट था। इन्होंने भी फॉल्स ऑब्लिगेशन, इन्होंने भी एक फॉल्स रिसर्च शो करी, और ऐसे ही सेम प्रोमिस करे कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बट एक्चुअली में ये सब रिसर्च सही नहीं होती। और बल्कि इनकी जो रिसर्च थी ना, उन्होंने और भी ज्यादा झूठा रिसर्च शो करा। उन्होंने बोला कि हम एसिड में, सोमेटिक सेल को एसिड में रखेंगे, एसिडिक मीडियम में रखेंगे, तो हम स्टेम सेल्स बना सकते हैं। तो बहुत सारे क्लिनिक, मतलब बहुत सारे अदर साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, तो इट वाज कि ऐसा पाया गया कि ऐसा ये मतलब नहीं हो सकता। प्लस इसमें रिलेटेड इन्होंने ये पॉसिबल नहीं है, इन्होंने इस तरह बताया। हाँ, तो ये स्टैप सेल्स का इन्होंने कंसेप्ट निकाला था, जिन्होंने बोला कि स्टेम सेल्स ऐसे क्रिएट हो सकती है। सो इट वाज आल्सो वेरी फॉल्स, पूरा सब कुछ झूठी रिसर्च थी उनकी। बाद में जब पता चला, तो इनमें भी बहुत ज्यादा इनमें भी, इनके खिलाफ भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए, इनको भी निकाल दिया गया था। और फिर लेटर ऑन क्या हुआ, लेटर ऑन मतलब ये आगे फर्दर ऑन रिसर्च भी नहीं कर पाई थी। और इनसे रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में भी आपको इनका मिल जाएगा, जिसमें फर्दर ऑन मतलब इन्हें लेटर ऑन कितनी ज्यादा लाइफ, मतलब आगे जाके इन्हें बहुत ज्यादा अपने रिसर्च, जो इनका करियर था पूरा ही खराब हो गया, सिर्फ एक फॉल्स, अपनी रिसर्च फॉल्स दिखा के। तो एक मतलब एक प्रॉपर कमेटी भी होती है, जिसमें हर मतलब, क्योंकि अब जो रिसर्च पेपर्स होते हैं वो ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, हर कोई मतलब रिसर्चर अपने उसमें सी कर सक देख सकता है, और उसे ऑब्जर्व कर सकता है, और उससे रिगार्डिंग अगर कुछ भी इशू है तो वो उन्हें बता सकता है, डायरेक्ट कमेंट कर सकता है, डायरेक्ट मेल कर सकता है रिसर्चर्स को। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज हाइड होती है, कोई भी अपना फॉल्स कोई भी रिसर्च शो करके ऐसा नहीं दिखा सकता है। तो ये कुछ मिसकंडक्ट्स मैंने आपको बताए, ये कुछ ही थे। ऐसे बहुत सारे स्टेम सेल रिसर्च में मिसकंडक्ट्स और अलग वो हुए हैं, जिसमें इन्होंने शो करा है, मतलब अलग अलग रिसर्च थे जिन्होंने बताया था, अलग अलग तरीके से फॉल्स डेटा शो करा है, जिसने बहुत सारे प्रोमिस करे, बट वो सब फॉल्स थे।
तो ये सारे रेफरेंसेस आई हैव यूज्ड, आई हैव मेंशन देम, एनीबॉडी वांट्स टू नो मोर these on these lists and search about it. So this is all about my talk. And there is one thing I will also want to share about the current research on the stem cell जो ongoing just एक हफ्ते पहले ही 6 सितंबर में ही निकला था, जिसमें रिसर्च पेपर जिसमें उन्होंने बोला था कि हमने 14 डे का मतलब उन्होंने 14 डे का एक एम्ब्रियो मतलब फॉर्म करा है लेबोरेटरीज में बाय यूजिंग मल्टीपल स्टेम सेल। तो उसका क्या नेगेटिव, अब उसका क्या एथिकल हो सकता है, इश्यू क्रिएट कर सकता है वो सब, उससे रिलेटेड भी ऑनगोइंग रिसर्च है और रिसर्चेस में चल रही है। और जितनी भी एप्लीकेशंस मोस्ट ऑफ है वो क्लिनिकल ट्रायल्स में, कोई भी लाइक ऐसी नहीं जो 100% क्योर हमें प्रोवाइड करती है। तो इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा है स्टेम सेल्स का। And so this is here my talk finished. And so I want to say thank you all of you to hearing me.